Hello students, from UG syllabus third year, I am elaborating disaster management. This is very important and much discussed topic in current scenario. As we all know, COVID-19 disease is a notified disaster. So what is the motto of disaster management is to prepare but don't panic for any already encountered disaster like COVID-19 or any upcoming disasters. We have seen that how tourism is related to disaster, how fast a disease or outbreak from a country via international traveling can affect the whole world. Like the example of COVID-19, it started from a small city of China, Wuhan, and now it is a pandemic which is affecting the whole world. Now, first we will come to what is disaster. So, as per WHO, any occurrence that causes damage, ecological disruption, loss of human life, or deterioration of health and health services on a scale sufficient to warrant an extraordinary response from outside the affected community area is a disaster. Or in simple words, a disaster is a sudden event that leads to huge loss of life, property, and environment. So there is also a word hazard. Hazard जो होता है उसका इम्पैक्ट स्मॉल स्केल पे होता है, उससे भी लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी एनवायरमेंट होता है, लेकिन ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, दैट इज हैजार्ड. These disasters can be classified on the basis of causes like natural disaster or they are man-made, or can be classified on the basis of onset like sudden and slow. Sudden are those in which we have minimal or no time to prepare, like an earthquake, tsunami, volcano, and cyclone. Whereas in slow onset, the adverse event is very slow to develop. First, the situation develops, then second is the emergency, like in the drought or in the epidemics. Now, on the basis of whether they are man-made or natural, now we will discuss further natural disasters like, as you see in the pictures, earthquakes, hurricane, cyclones, typhoons, tsunami, floods, landslides are some of the examples of natural disasters. Whereas man-made disasters like such as Bhopal gas tragedy, atomic power plant failure, terrorist attack, pandemic such as COVID-19, because the leakage of COVID-19 novel coronavirus is because of a human error. Industrial accidents, chemical and toxic gases releases such as Bhopal gas tragedy. Has three phases. Before the impact is pre-impact phase, then impact phase, the main phase, and after that post-impact phase. In the impact and post-impact phase, all the agencies which work for disaster management comes together to provide relief, medical assistance, and identify dead and provide shelter. And post-impact phase, so that minimal damage to life and property and environment occurs, disaster management is very important. Dealing with both natural and man-made disasters and avoiding it, and preparedness before a disaster comes or before a disaster impacts, rebuilding and supporting society after natural disasters. Before coming to phases of disaster management, first I humbly request to all students to please go through this site. This is site of NDMA or National Disaster Management Authority, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण, भारत सरकार की. इस वेबसाइट के द्वारा हमें ये पता चलेगा कि कोविड-19 जैसे जो भी पेंडेमिक आई है, डिजास्टर आई है, उसको कब तो नोटिफाई किया गया. मार्च में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नोटिफाइड डिजास्टर कर दिया और उसके जो फैक्ट्स हैं वो भी यहाँ दिए गए हैं. तो इसका शॉर्ट हिस्ट्री जानते हैं. गुजरात अर्थक्वेक जब आया था उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये महसूस हुआ कि अगर डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी कोई अथॉरिटी यहाँ होती और अगर हम पहले से इस बात की प्रिपेयरनेस करते तो होने वाले नुकसान को
कम से कम किया जा सकता था, जो जनहानि हुई वो कम से कम हो सकती थी। इसी उद्देश्य से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल कमेटी का गठन किया 1999 में। उससे 6 साल बाद 23 दिसंबर 2005 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इस एक्ट के अधीन 3 मेन चीज हुई। एक तो एनडीएमए जो ये अथॉरिटी है इसका गठन हुआ, जिसको हेडेड कौन करते हैं, पीएम ऑफ इंडिया। सेकंड, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज का गठन हुआ, जिनके हेड होते हैं रिस्पेक्टिव सीएम्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। थर्ड, एनडीआरएफ फोर्स दैट इज नेशनल डिफेंस रिस्पांस फोर्स का गठन हुआ, जो कि एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशलाइज्ड रिस्पांस टू एनी डिजास्टर। Disaster management has 5 phases, coming from mitigation, preparedness, then there is the impact of the disaster. To impact, there is a response, rehabilitation and reconstruction. Out of these, response, rehabilitation and reconstruction are the recovery phases which are done after a disaster, whereas preparedness and mitigation are the risk reduction phases which are done before a disaster so that the risk to life, property, environment decreases. Now, coming to this first phase, disaster preparedness. The preparedness in the form of money, manpower, and material. The preparedness is a phase which is a continuous and integrated process in which there is a wide range of activities and resources from multi-sectoral sources. इसके अंदर केवल नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल का भी कॉपरेशन होता है, जिसमें हम स्टॉक करते हैं फूड का, ड्रग्स का, एसेंशियल कमोडिटीज का, और इसमें वेरियस डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं। इन दिस वी मेक प्लान टू रिस्पॉन्ड टू डिजास्टर। अगर डिजास्टर आ जाएगा तो हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो प्लान बनाते हैं। इसके अंदर एग्जांपल्स हैं जैसे प्रिपेयर्डनेस प्लान्स, इमरजेंसी एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग्स एंड वार्निंग सिस्टम्स। जैसे साइक्लोन या हरिकेन का वार्निंग मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पहले दे देता है, तो सरकार क्या करती है कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पे शिफ्ट कर देती है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रिपेयर्डनेस। नाउ कमिंग टू इज सेकंड फेज, डिजास्टर इम्पैक्ट, which is discussed in the next slide. After a disaster impact comes disaster response phase, in which there are some immediate actions and there are some relief actions. So we'll discuss the immediately after the impact हमें क्या actions लेनी चाहिए disaster management में, हम पहले डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले सर्च होता है, रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड टू द पीपल which are in between the disaster. Then there is a field care by providing victims shelter in nearby school, community halls. Then there is a triage system which is done at the spot of disaster, at the disaster site. We'll discuss it in detail later. Dead management, that is जो डेड हो गए हैं उनका पता लगा के उनको सेपरेट करना. Thereafter comes a relief phase in which there is acquisition of supplies, transportation, storage and distribution of food, clothes, blankets, shelter, sanitary equipments, drug kits, etc. Then there is a vaccination of health workers in case of infectious disease transfer, so that they doesn't become the victim of the disease itself. Now, triage. What is a triage? Triage is rapidly classifying the injured on the basis of severity of their injuries and likelihood of their survival. Triage इसलिए जरूरी है ताकि हमें ये पता चल जाए जो डेड है उनको ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, उनको सेपरेट करके जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है, जो सीवियर है उनको पहले ट्रीटमेंट मिले, और जिनको कम ट्रीटमेंट की जरूरत है, जो मिनिमल है, उनको हम बाद में भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उनको कहाँ फोकस करना ये जरूरी होता है, इसलिए ट्रायल सिस्टम डेवलप हुआ है. इट इज नॉट बेस्ड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस एंड इट इज डन एट द डिजास्टर साइट. आप देख सकते हैं इसमें ट्रायल टैग का पिक लगा हुआ है, इस तरह से ट्रायल टैग होता है, और ये टेबल है. रेड कलर का ट्रायल टैग उसको दिया जाता है जो जिसको इमीडिएट, जो बहुत सीवियर इंजरी जिसको है, इमीडिएट जिसको चिकित्सा की जरूरत है, उसको हम रेड ट्रायल टैग देते हैं. जिसको उससे कम है, डिलेड है, उसको येलो ट्रायल टैग होता है. और जिसको बहुत कम इंजरीज है, मिनिमल है, सो ग्रीन होता है, और जो डेड है उनको ब्लैक ट्रायल टैग दिया जाता है.
और द साइट ही इनको डिवाइड कर दिया जाता है। और ये जो ट्रायल स्टैक होता है, इसके अलावा इसी के अंदर टैगिंग भी होती है। वो कैसे होती है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। टैगिंग में जो होता है उसके बारे में, पेशेंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है। उसका नेम क्या है, उसकी एज क्या है, क्या सेक्स है, क्या लोकेशन है, क्या सिम्टम्स को जज किया है, जो सीवियरिटी है ऑफ इंजरी वो कितनी है, और कितनी अर्जेंसी की जरूरत है। जो अर्जेंसी और सीवियरिटी जो है वो तो ट्रायल टैगिंग से हो जाती है, और जो उसकी बाकी इंफॉर्मेशन है वो टैग से हो जाती है। तो ट्रायल टैग ऐसा होता है पूरा, जिसमें ऊपर उसकी खुद की इंफॉर्मेशन होती है पर्सन, और नीचे उसकी सीवियरिटी और अर्जेंसी की इंफॉर्मेशन होती है। इसमें प्लेस ऑफ ओरिजिन भी होता है, डायग्नोसिस भी होता है, और इनिशियल ट्रीटमेंट क्या दे दिया गया ये भी इसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है। After disaster recovery phase is rehabilitation phase, in which supply of safe drinking water and proper disposal of excreta is very important, so as to avoid the all fecal-oral route disease transmission. And best way to discipline a doctor during any epidemic or during any disaster is by chlorination. 0.2 to 0.5 milligram per liter is a dose. Then supply of safe and hygienic food is also important. Basic sanitation, personal hygiene measures, and to control vector, so as to prevent the vector-borne diseases and to prevent communicable disease spread. As we are seeing in the cases of COVID-19, government is trying many measures to stop the further spread of COVID-19 disease. Then there comes the disaster reconstruction phase, in which returning the community to normal or strengthening the capacity of country to efficiently manage all emergencies is very important, in which ideally the affected area should be put in a condition which is equal to or better than it was before the disaster took place. Example, temporary housing, grants, medical care includes following things: referrals to hospital as needed, remain alert for environmental health, psychological support to victims, and health teaching. We also see these steps in cases of COVID-19. The further training is there, and conversion of all central school or schools to quarantine center as the example. Then there comes a mitigation phase. Mitigation means preventing hazard from causing an emergency. So all action which are taken before a disaster to reduce its impact, including preparedness and long-term risk reduction measures, are called as mitigation, like building codes, zoning, vulnerability analysis, public education are all mitigation activities. In case of COVID-19, we are seeing that government is trying very hard in the rehabilitation and reconstruction phase, so as the disease, which is already a disaster, does not cause further harm. Short note on disaster management of COVID-19 disease, which is a notified disaster by Government of India. In this हम disaster management की कौन सी phases देख पा रहे हैं अभी? तो एक तो preparedness, जिन एरिया में अभी कोविड-19 का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, जिन स्टेट्स में अभी नहीं हुआ है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर्डनेस कर रही है, मिटिगेशन एक्शंस ले रही है। जैसे ऑलरेडी बड़े बड़े क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, तो इफ अगर केसेस उनके प्रदेश में आ जाते हैं, केसेस बढ़ जाते हैं, तो उनके पास फैसिलिटी हो, वो लोग वेंटिलेटर्स खरीद रहे हैं ताकि उनके पास ट्रीट करने की फैसिलिटी हो। मलेरिया क्लोरोक्विन डिजीज की जो ड्रग है क्लोरोक्विनिन, उसकी बाइंग हो रही है। दीज आर द प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन फेजेस। और जहाँ ये इम्पैक्ट हो चुका है कोविड-19 का, वहाँ क्या हो रहा है, डिजास्टर की रिकवरी या रिस्पॉन्स फेज हो रही है और रिहेबिलिटेशन फेज चल रही है। तो कोविड-19 डिजास्टर में सबसे पहले क्या जरूरी है, इंसिडेंट का रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है। जैसे जो पहला केस था केरला में, वो आया था इंडिया में, तो उसका रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है। फिर उसका नोटिफिकेशन, ताकि पूरे इंडिया में नेशनली नोटिफाइड हो, ताकि सब गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को पता हो कि ये डिजीज इस स्टेट को इफेक्ट कर चुकी है। जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो अलर्ट हो जाएं और प्रिपेयर हो जाएं। जैसे इसमें जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो अपनी बाउंड्रीज को क्लोज कर सकते हैं, आवागमन जो है इसको प्रतिबंधित कर सकते हैं, ठीक है। और लेबोरेटरी टेस्टिंग जो हमारी एफिशिएंसी है उसको और बढ़ा सके। जैसे 1 लाख टेस्ट एक दिन में हो सकते हैं इंडिया में, तो गवर्नमेंट बहुत ट्राई कर रही है कि ये नंबर ऑफ टेस्ट जो एक दिन में हो सके उसको बढ़ाया जा सके, तो लेबोरेटरी टेस्टिंग जो फैसिलिटी उसको बढ़ाया जा सके। फिर हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस,
बाइंग ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स लाइक वेंटिलेटर्स, आईसीयूज में बेड की संख्या बढ़ाई गई है, नए क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, सब हॉस्पिटल प्रिपेयरनेस का ही पार्ट है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फेक्शियस कंट्रोल स्ट्रेटेजीज लाइक डीमोबिलाइजेशन, जो हम सोशल डिस्टेंसिंग या जिसको लॉकडाउन भी कहते हैं, ये एक मेजर है ताकि जो हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है आगे ना फैले। तो डीमोबिलाइजेशन में क्या हुआ, या तो कर्फ्यू लागू हुआ है कई जगह पे लॉकडाउन हुआ है, जहाँ कर्फ्यू लॉकडाउन है वहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। उसके बाद बाय वेरियस वेबिनार्स एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग हेल्थ पर्सनल्स को इस नई डिजीज के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो इसका और ध्यान रखें। बाय बाय आईजीओटी वेबसाइट के द्वारा ऑनलाइन ट्रेनिंग इज अवेलेबल फॉर एनी पर्सन ऑफ इंडिया कैन डू ट्रेनिंग, जो उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग है, तो कोई भी इसको ऑनलाइन फ्री ट्रेनिंग कर सकता है। आफ्टर दैट पीपी प्लान, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है उसकी डॉनिंग, मतलब उसको कैसे पहनना है, उसको उसको कैसे उतारना है ताकि वो जो इन्फेक्शन पेशेंट से है वो डॉक्टर का ना हो जाए, इसकी भी ट्रेनिंग हुई है। देन देयर इज डोर टू डोर स्क्रीनिंग, पूरे जो भी एरिया है जहाँ केस मिला है उस पूरे एरिया को सीज करके वहाँ पे स्क्रीनिंग होती है ताकि कोई फर्दर उस तरीके से इन्फेक्ट तो नहीं किया, किसी में कोई केसेस तो नहीं आए हैं। इस तरह से गवर्नमेंट स्क्रीनिंग करा रही है। स्क्रीनिंग कराने के बाद जो पेशेंट मिलता है उसका अगर आप इन्फेक्टेड नहीं लगता है, जब तक रिपोर्ट नहीं आती है उसको घर में ही आइसोलेट करने को बोलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को बोलते हैं। और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है या हाई सिम्टम्स मिल रहे थे तो उसको क्वारंटाइन कर देते हैं क्वारंटाइन सेंटर में। आफ्टर दैट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो हॉस्पिटल्स में जैसे जो पीपीई है जो निकालने के बाद डस्टबिन में आ गया है, जो भी इन्फेक्शियस मटेरियल है उसका बायो हैजार्ड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि क्योंकि अगर इसका वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो ये फर्दर डिजीज को स्प्रेड कर सकता है। थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट।